The registration form, alternatively you can use offline. Foundations Office. Remember, small step towards enrolling in this program can make a world of difference for you and your loved ones. Stay healthy and take care. In many Indian households, medical insurance planning is often neglected, and unfortunately, preventive healthcare remains out of reach for a large population. But don't worry, the Mahesh Foundation is here to change that with the Mahesh Privilege Card. As a thoughtful solution to address these healthcare challenges, this card offers a plethora of benefits, including discounts, diagnostic centers, hospitals, pharmacies, dental care, and much more. Here are a few key features of the Mahesh Privilege Card. It is valid for 2 years or up to 31st December 2023, and the foundation plans to renew it for the following 2 years. The card costs rupees Premier Hospitals. Our partner pharmacies are offering discounts ranging from 22 to 70%. Bhagwati Medicals, etc. So, how do you enroll in this fantastic initiative? Well, it's simple. Just visit our website www.maheshcard.org and fill out the registration form online. Alternatively, you can do so offline at the Mahesh Foundation's office. Remember, a small step towards enrolling in this program can make a world of difference for you and your loved ones. Stay healthy and take care. In many Indian households, medical insurance planning is often neglected, and unfortunately, preventive healthcare remains out of reach for a large population. But don't worry, the Mahesh Foundation is here to change that with their Mahesh Privilege Card and other healthcare initiatives. The Mahesh Privilege is a thoughtful solution. This card offers a plethora of benefits, including discounts at diagnostic centers, hospitals, pharmacies, dental care, and much more. Here are a few key features of the Mahesh Privilege Card. It is valid for 2 years or up to 31st December 2023, and the foundation plans to renew it for the following 2 years. The card costs just rupees 100 per member. If you're a Maheshwari person with an Aadhaar card,
Regardless of your age, you can enroll. Even entire families, regardless of size, can register together. In case of emergencies, the foundation can issue cards for immediate benefits. Lost cards can be downloaded immediately with a click. Personalized pre-printed PVC cards are mailed to your doorsteps. The card is easy to use alongside valid ID proofs. Almost 80% of the esteemed diagnostic centers in the Twin Cities have joined hands with us as loyalty partners. These include Vijaya Diagnostics Center, Kapadia Diagnostics Center, Satya Diagnostic Center, Sabu Diagnostics, Focus Diagnostics, etc. Some of the reputed and trusted hospitals enrolled with us are KIMS Hospitals, Sunshine Hospitals, Continental Hospitals, Kamaleni Hospitals, Premier Hospitals, Renovo Hospitals, etc. Our partner pharmacies are offering discounts ranging from 22 to 70%. These include most well-known names such as Vishnu Medicals, Ganga Medicals, Bhagwati Medicals, etc. So, how do you enroll in this fantastic initiative? Well, it's simple. Just visit our website www.maheshcard.org and fill out the registration form online. Alternatively, you can do so offline at the Mahesh Foundation's office. Remember, a small step towards enrolling in this program can make a world of difference for you and your loved ones. Stay healthy and take care. In many Indian households, medical insurance planning is often neglected, and unfortunately, preventive healthcare remains out of reach for a large population. But don't worry, the Mahesh Foundation is here to change that with their Mahesh Privilege Card and other healthcare initiatives. The Mahesh Privilege Card is a thoughtful solution to address these healthcare challenges. This card offers a plethora of benefits, including discounts at diagnostic centers, hospitals, pharmacies, dental care, and much more. Here are a few key features of the Mahesh Privilege Card. It is valid for 2 years or up to 31st December 2023, and the foundation plans to renew it for the following 2 years. The card costs just ₹100 per member. If you're a Maheshwari person with an Aadhaar card, regardless of your age, you can enroll. Even entire families, regardless of size, can register together. In case of emergencies, the foundation can issue cards for immediate benefits. Lost cards can be downloaded immediately with a click. Personalized pre-printed PVC cards are mailed to your doorsteps. The card is easy to use alongside valid ID proofs. Almost 80% of the esteemed diagnostic centers in the Twin Cities have joined hands with us as loyalty partners. These include Vijaya Diagnostics Center, Kapadia Diagnostics Center, Satya Diagnostic Center, Sabu Diagnostics, Focus Diagnostics, etc. Some of the reputed and trusted hospitals enrolled with us are KIMS Hospitals, Sunshine Hospitals, Continental Hospitals, Kamaleni Hospitals, Premier Hospitals, Renovo Hospitals, etc. Our partner pharmacies are offering discounts ranging from 22 to 70%. These include most well-known names such as Vishnu Medicals, Ganga Medicals, Bhagwati Medicals, etc. So, how do you enroll in this fantastic initiative? Well, it's simple. Just visit our website www.maheshcard.org and fill out the registration form online. Alternatively, you can do so offline at the Mahesh Foundation's office. Remember,
A small step towards enrolling in this program can make a world of difference for you and your loved ones. Stay healthy and take care. In many Indian households, medical insurance planning is often neglected, and unfortunately, preventive healthcare remains out of reach for a large population. But don't worry, the Mahesh Foundation is here to change that with their Mahesh Privilege Card and other healthcare initiatives. The Mahesh Privilege Card is a thoughtful solution to address these healthcare challenges. This card offers a plethora of benefits, including discounts at diagnostic centers, hospitals, pharmacies, dental care, and much more. Here are a few key features of the Mahesh Privilege Card. It is valid for 2 years or up to 31st December 2023, and the foundation plans to renew it for the following 2 years. The card costs just ₹100 per member. If you're a Maheshwari person with an Aadhaar card, regardless of your age, you can enroll. Even entire families, regardless of size, can register together. In case of emergencies, the foundation can issue cards for immediate benefits. Lost cards can be downloaded immediately with a click. Personalized pre-printed PVC cards are mailed to your doorsteps. The card is easy to use alongside valid ID proofs. Almost 80% of the esteemed diagnostic centers in the Twin Cities have joined hands with us as loyalty partners. These include Vijaya Diagnostics Center, Tapadia Diagnostic Center, Satya Diagnostic Center, Sabu Diagnostics, Focus Diagnostics, etc. Some of the reputed and trusted hospitals enrolled with us are KIMS Hospitals, Sunshine Hospitals, Continental Hospitals, Kamineni Hospitals, Premier Hospitals, Renovo Hospitals, etc. Our partner pharmacy.
ఆదివారం అయిపోతుందా? వీళ్ళకి బాగుంది స్టేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళ హైట్ ఉంది కదా సౌండ్ సింగిల్ సింగ్ టీవీ పెట్టుకుంటే అయిపోయింది. ఇంకా రెండు పెట్టి మధ్యలో రెండు మానిటర్లు పెడితే అయిపోయాయి. యాభై వందకే ఉంది వీడియో ఇసులో ఆర్టిస్ట్ కళ్యాణ మండపంలో పెట్టినా మస్తు మంచిగా ఉంటుంది. అది సేమ్ ఇట్లనే ఉంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది. బాగుంది రైటింగ్ కూడా డల్ ఉంటుంది అన్నారు మంచిగా అనిపిస్తుంది. అచ్చా ఇది కూడా ఏం లేదు కదా సార్ అసలు ఏమీ లేదు అచ్చా ఎందుకంటే ఏం లేదు కొన్ని రోజులు బంద్ ఉన్నాయి కదా. నాకు తెలిసినప్పుడు కదా థియేటర్ నుండి వచ్చింది. థియేటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సెల్ స్టార్టింగ్ థియేటర్ సెటప్ చేసిన అర్థమైంది థియేటర్ థియేటరే ఇదైతే స్క్రీన్ సార్ నడవలేక రీఛార్జ్ చేయడం బాగుంది కూర్చొని ఆడియన్స్ దాంట్లో కూడా ఉంది కదా పంక ఆర్టిస్ట్ పంకాయ పంక మస్తు వస్తుంది కాదు. ఎవరికి అంత అనిపిస్తుంది ఎంతో స్లో అనిపిస్తుంది గాలి బాగా వస్తుంది నేను ఎక్కువ దూరం బాగు కదా. కోసం ఎన్ని కట్టినా కానీ స్మార్ట్ అది కదా నీట్ ఉంటుందా. ఇరవై వేలు 15,000 ఉంటుంది. పనిచేస్తుంది. డేటా ప్లానింగ్ మొత్తం కింద మార్కెట్స్ ఎలా స్నాక్స్ అన్నీ ఐస్ క్రీమ్ ఎవరు చెప్పినా అదే అదే షాక్ సార్ ఐస్ క్రీమ్ లైఫ్ ఓకే కానీ లైఫ్ వీడియోగ్రాఫర్ ఉంటుంది. వీడియోగ్రాఫర్ ఏంటో లైఫ్ వేరే भैया भैया సైడ్ ఇస్తే మొత్తం మటన్ కావాలన్నా టేబుల్ పెట్టి బాగా పెడితే అలా చాలా పైసలు ఉంటాయి. నేను అది మీరంటే ఇది సేమ్ ఈ పడేదాన్ని కూడా నేనైతే
చదివాను ఏం లేదు నాకు అయిపోయింది నేను కూడా ఒకటి చిన్న కనెక్టర్ అనే అడుగుతున్నాను. అదే ఉంటుంది ఐఫోన్లో కేబుల్ దొరకదు ఏం దొరకదు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్కి సీపీ తీసి వేరే సీపీ వస్తలేదంట వస్తలేదంట. దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకోవాలంట. టైప్ చేయించింది టైప్ చేయించాడు మావాడు అమ్మాయి ఇరవై బయట పోయినప్పుడు అంటే పెడితే వస్తుందంట. దాని వల్ల వేరే సాఫ్ట్వేర్ కావాలని తీసుకొని చాలా అట్లా అంటున్నారు దానివల్ల తీసుకుంటున్నాను మస్తు అంతా పోటీని కూడా 40,000-50,000కే పడ్డాయి. కష్టం ఆఫర్లో దొరకాలంటే చాలా వేరే సోల్డ్ అవుట్. అది షాప్లోనే కొనేస్తారు. కానీ ఇవ్వాలంటే మేము వైఫై దొరుకుతాం ప్రైవేట్ కావాలి క్రెడిట్ కార్డు కూడా లేదంటే సిస్టమ్ ఏదైనా స్పీడ్ ఫోన్ తీసుకోవాలి. మొత్తం ఆటో కూడా మొత్తం రెడీ పెట్టుకుంటే ఇట్లా ఇక్కడేమో లిమిట్ పెట్టేస్తాడు ఆయన స్టాప్ దాని నుంచి ఏమి मार्केटिंग सीट का बोलेगा करना ही पड़ता है, नहीं बदल तो हमारी भी करनी है ये नहीं वीडियो वीडियो चला चला नको बोला ठीक है जब से चला तेरा लाइट म्यूजिक लगा अपना आ रहे सही नहीं आ रहे लाइट कुछ भी नहीं आ सॉरी सही नहीं आ रहे. आप ये तो लगा लो उसको लगा लो टेंशन साउंड नहीं आ रहा आप बोले ना लाउड लाइट हाँ मेरा तो सीपी नहीं आता तुम्हारा फोन लगा ट्रैकिंग आता ना अपने फोन तुम्हारा मेरे फोन सीपी नहीं मेरा या लाइट नहीं ऑप्शन क्या नहीं मेरे को फोन में ऐसा कैसा ऑप्शन है ऑडियो में ऑप्शन ले दिया क्या సరే నేను పెడతా అలాగే లేదని అది సీపీని పంపిస్తాను 7 సీపీకి అది ఉండదు కరెక్ట్గా కనెక్టర్ ఉంటుంది ఉంటే వాడుతున్నాం అది ఏ ఫోన్ పెట్టారు అదే ఐఫోన్ ఫోటో అంటే ఆడ 5 సంవత్సరాలు తీసుకోవాలి 5 సార్లు ఇంకా నడుస్తుంది. ఏం నడవకుండా డిస్ప్లే బాగుంటుంది డిస్ప్లే ఇలా పిల్లలు ఉన్న భయంలో మా దగ్గర పడుతూనే ఉంటాయి అన్న చేస్తుంటాం కదా ఇవన్నీ వల్లుతూనే ఉంటాయి మీటింగ్ కదా లైవ్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయితే అప్పుడు ఇక్కడైతేనే అప్పుడు అప్లోడ్ అప్పుడైతే చేయాలంట నాకు మార్నింగ్ మీకు వస్తుందా ఈవినింగ్ అలా ఉండదా అంటే ఏమో తెలియదు నాకైతే తెలియదు మొత్తం ఏమో మనకి
हेलो हेलो बाहर प्रांगण में खड़े सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, कृपया सभागृह में पधारें। सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं समाज बंधु कृपया प्रांगण में पधारें। कुछ ही क्षणों में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
रवि भाई बाहर से समाज बंधु ठहरे हुए उनको एक बार अंदर भिजाइए। स्टेज पे गेस्ट गया तो उसको कुछ 2-4 लोगों का तो दिखना ना सामने, इतना बड़ा हॉल है, 10 ही है। चालू करो अध्यक्ष जी, माइक पर और आ जाइए। अध्यक्ष जी एक बार आप मंच के समीप आ जाइए। कर दियो जय महेश। भगवान महेश की आज्ञा से आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम अध्यक्ष और तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भाई श्री कैलाश जी दालिया मंच पर पधारे और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। श्री कैलाश जी दालिया, तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा अध्यक्ष। आमंत्रित तो नहीं करूंगा मैं तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के
मंत्री मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा बहन रजनी जी राठी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। मंत्राणी श्रीमती मंजू जी, आपका मंच पर स्वागत। हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भाई श्री भगवान जी पसारी से निवेदन हुए मंच पर पधारे। हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा के मंत्री भाई श्री राजेश जी मानपानी, आपका मंच पर स्वागत है। हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा बहन लता जी कोष्टिया से निवेदन कृपा मंच पर पधारे। मंत्राणी श्रीमती आरती जी असावा, आपका भी मंच पर स्वागत है। ठीक है, कुछ समय पश्चात आपका स्वागत करेंगे। मैं भाई लक्ष्मीकांत जी भक्कर, पवन जी पलोड़ और हरीश जी लोया से निवेदन करूंगा मंच के पास आए। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार जी बंग, आपका मंच पर स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा ससम्मान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार जी बंग को मंच पर लेकर आए। श्री सुरेश कुमार जी बंग सुप्रसिद्ध अधिवक्ता आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। क्षमा चाहता हूं, सुबह का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में अटेंड नहीं कर पाया था, इसीलिए प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रहा। अखिल भारतवर्ष माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिणांचल की सह मंत्राणी श्रीमती रेणु रमाकांत जी साड़ा से निवेदन है, कृपा मंच पर पधारें। कैलाश जी साहब गुस्सा में भी आओ तो चाली मैं साथी में साथ बात महानकट प्रोटोकॉल समझ में आओ। मैं आग्रह करूंगा भाई सुनील जी मालू, पुरुषोत्तम जी लाहौटी, कृपया मंच के पास आए। भाई श्याम जी बियानी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता साइंटिस्ट एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDO समाज रत्न श्री विनोद जी काबरा को ससम्मान मंच पर लेकर आए। आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता श्री विनोद जी काबरा। मैं भाई भगवान जी सारडा और राजेंद्र भाई से निवेदन करूंगा मंच के पास आए और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन आध्यात्मिक प्रशिक्षक एवं कार्य समिति सदस्य जिनको सुनने के लिए हम लालायित होते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके कार्यक्रम 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पर सेशन के होते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे अपने शहर से है, श्री रमेश जी परतानी को आप सम्मान मंच पर लेकर आए। मैं निवेदन करूंगा सीताजी मालपानी, विजेताजी जाजू मंच के पास आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एवं संवादकर्ता प्रसिद्ध उद्योजक श्रीमती बहन भगवती जी महेश भगवती जी बलदवा आपको ससम्मान मंच पर लेकर आए। श्रीमती भगवती जी बलदवा का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। मैं मंचासीन सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि भगवान महेश के चित्र जी के पास आए, भगवान महेश का पूजन और महेश वंदना करके इस कार्यक्रम का हम श्री गणेश करेंगे। तो सभी से निवेदन है, भगवान महेश का पूजन। आज के कार्यक्रम को उद्घाटनकर्ता से निवेदन रहेगा सभी के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पहले भगवान महेश का पूजन, फिर दीप प्रज्वलन, उसके बाद महेश वंदना। सभी से निवेदन है, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, भगवान महेश की वंदना।
जैसे आप सभी को विदित है कि हम भगवान महेश की संतान हैं, इसीलिए हमारे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में हम भगवान महेश के पूजन और महेश वंदना से ही उसका शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भाई श्री कैलाश जी बालिया से निवेदन करूंगा माइक पर आए और अपना आज का अध्यक्ष उद्बोधन सभागृह को प्रेषित करें। भाई श्री कैलाश जी बालिया। जय महेश। आज महेश्वरी समाज के जीनियस ऑफ जनरेशन महेश जनरल नेक्स्ट और सांस्कृतिक एवं संस्कार परिवार के बारे में आए सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मंच पर पधारे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान श्री सुरेश कुमार जी भाई अग्रवाल साहब, उद्घाटन करता आदरणीय श्री विनोदी काबरा साहब और आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे महासभा के कार्य समिति सदस्य एवं जीनियस के बारे में प्रवक्ता आदरणीय श्री रमेश जी पटानी साहब और अपनी यहाँ की ऊर्जा शक्ति सबको प्रदान करने वाले सबके यहाँ अपने समाज के अंदर ऊर्जा शक्ति समाज के अंदर जागृति लाने के आदरणीय भाई हमारे श्री भगवती जी बंदेवा, सभी का आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम चारों संस्था का हम क्या स्वागत करेंगे, हम चारों संस्था तो मिलकर काम ही कर रहे हैं इसके अंदर। स्वागत तो सभी आप लोगों को जो पधारे अपने समय के अंदर से समय निकाल के उसके लिए आप लोगों का सभी का स्वागत है इसके अंदर। और सबसे मेन अपने समाज में इतनी कुछ जागरूकता आने की बहुत कम होती जा रही है, जागरूकता कैसा लाए उस पर सबको चिंतन करना चाहिए। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम ऐसी बचा है कि भाई आने वाली जनरेशन के अंदर अपने
कि भाई अपनी यंग जनरेशन अपने समाज में कैसा जुड़े और उसके करियर बाकी के अपने पारिवारिक के अंदर आजकल जो घर घर में घर की घर का किस्सा वही होता है कि भाई हर घर में इसका शांतिपूर्वक वातावरण कैसा बने और हर अपने नामन से काम करने का कैसा करे, तो सब महासभा के आदेश अनुसार सब कार्यक्रम करना है अपने को। तो मैं यही कहूँगा भाई केक पे तो बोलने की थोड़ी आदत हमारे लोग कम है, तो इसको निवेदन नहीं है कि प्रक्रिया जो उनका अपन सुनने के लिए आए उनके सुनने का लाभ लेते हुए निवेदन करूंगा कि भाई आप सब बहुत अच्छी तरह सुनिए और सबसे जागरूकता समाज में कैसा लाए कि भाई समाज में हमें क्या करना है, समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, समाज के लिए हम उनको क्या अपना विचार रख सकते हैं, तो अपना विचार रखिए। हम तो कार्यकर्ता के रूप में आए हुए हैं, कार्यकर्ता में काम करना चाहते हैं। सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई भविष्य में हमको कोई कार्यकर्ता के रूप में हमको सजेशन दीजिए कि भाई समाज के लिए क्या करें। उसमें कहूँगा सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे अध्यक्ष जी की क्वालिटी है कम शब्दों में अपना सारा जो मैसेज है वो दे देते हैं और कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि ज्यादा बोलने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भाई आनंद जी राठी आजादी ओम डी मोदानी आपसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री रमेश जी परतानी का पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह ये देकर इनका सम्मान करें। श्री ओम जी मोदानी, भाई आनंद जी राठी, श्री मनोज जी सोमानी। बाहर ग्राउंड में जो भी भाई खड़े हैं उनसे निवेदन, भाई और बहनें जो भी खड़े हैं उनसे निवेदन है सभागृह में आ जाओ। श्रीमती उर्मिला जी डालिया, चंदा जी सोनी वरंगल या लीला जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। और आज की हमारी मुख्य वक्ता और संवादकर्ता बहन श्रीमती भगवती जी बल्लवा, आपसे निवेदन थोड़ा आगे आ जाए तो सम्मान करने वालों को भी आसानी। स्मृति चिन्ह एवं शॉल से बहन श्रीमती भगवती जी बल्लवा, कार्य समिति समस्त सदस्य, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, इनका सम्मान। और सभी महिला मंडल से निवेदन है भाई श्री रवि जी राठी, श्री रामनगर जी साड़ा हुंडेगार एवं आनंद जी राठी, आपसे निवेदन करता मंच पर पधारें। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध अधिवक्ता भाई श्री सुरेश कुमार जी पंका शॉल और स्मृति चिन्ह से स्वागत सम्मान करें।
मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश जी बंग वरंगल, भाई राजेंद्र जी राठी, भाई किशोर जी बजाज, कृपया मंच पर पधारे। भाई राजेंद्र जी राठी, भाई रामदेव जी सावड़ा, भाई रामाकर जी भंवर, झरचंदा, भाई मोहन जी पलोर, आपसे निवेदन कृपा मंच पर पधारें और आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता भाई श्री विनोद जी काबरा का स्मृति चिन्ह, शाल और पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, हमारे समाज के रत्न, मतलब कितनी वर्सेटैलिटी हमारे समाज में। ये देखिए कि डीआरडीओ में भी साइंटिस्ट हमारे समाज के एक बंधु है, हमारे लिए यह गौरव का विषय है। श्री विनोद जी काबरा। और ये सम्मान स्वागत का कार्यक्रम हमने महेश जी बंदवा के प्रांगण में आने के पहले कर लिया। हाँ, अन्यथा नाराजगी होती है महासभा के हिसाब से। मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार जी बंग से निवेदन करूंगा कि सभागृह को अपने कुछ सुविचार यहां पर प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सुरेश कुमार जी बंग आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता। जय महेश। मंच पर विराजमान कार्य समिति सदस्य श्री महेश जी बंदवा, प्रादेशिक सभा अध्यक्ष श्री कैलाश जी गालिया, महामंत्री श्री कन्हैयालाल जी राठी, महिला संगठन अध्यक्षा श्रीमती रति जी राठी, मंत्राणी श्रीमती मधुलता लाहोटी, जिला अध्यक्ष श्री भगवंता जी पंसारी, जिला महामंत्री श्री राजेश जी लालपानी, जिला महिला संगठन अध्यक्षा श्रीमती लता जी तोषनीवाल, मंत्राणी श्रीमती आरती जी आसावा। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री रमेश जी पड़तानी एवं वक्ता एवं संवादकर्ता श्रीमती भगवती जी बंदवा एवं सभागृह में उपस्थित समाज बंधु, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर आपने जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। आपकी संस्था द्वारा इस प्रकार के सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम निरंतर करने से समाज बंधुओं को रचनात्मक परिवर्तन का आभास होता है, जिससे समाज के बालिक बालिकाओं को गुणवान बनाने हेतु अनुपम प्रयास एवं परंपराओं को सहेजने हेतु एक पहल से समाज बंधुओं में हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार परिलक्षित होंगे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में आया तो मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन
इन दोनों वक्ताओं को सुनने की जिज्ञासा और उत्सुकता के चलते सभागृह में बैठकर सुनना चाहता हूं। इस हेतु मन से अनुमति चाहता हूं। आपकी इच्छा पूरी की जाएगी मुख्य अतिथि साहब। कुछ समय के पश्चात हम इन 2 वक्ताओं को यही छोड़ेंगे, बाकी सब हम सभागृह में ही बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी मान, आज के हमारे मुख्य अतिथि। अब मैं आमंत्रित करूंगा माइक पर हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, समाज रत्न, साइंटिस्ट एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDO भाई श्री विनोद जी काबरा सभागृह को अपना संबोधन प्रदान करें। श्री विनोद जी काबरा। जय महेश। आदरणीय मंच, आयोजनकर्ता एवं सभा में उपस्थित सभी समाज बंधुओं को मेरे नमस्कार। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हम सभी समाज बंधु भाग्यशाली हैं कि ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसका देश की प्रगति के हर क्षेत्र में योगदान है। और हम जब जैसे बेसिकली हम वी वर्क विद सो मेनी अदर दूसरे समाज के लोगों के साथ काम करते, तब पता चलता है कि जो हमारे समाज की सोच है कितनी मतलब उसके वजह ये जो सेल्फलेस सर्विस वाला पॉइंट हमारे समाज में हम देखते हैं, वो शायद ही और कोई दूसरे समाजों में नजर आता है। और इससे आज का ये सामाजिक एवं पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम समाज को संगठित एवं उत्तम भविष्य की ओर अग्रसर करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा हम सब ने सुना है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ऐसे प्रोग्राम हमें राइट एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करते हैं और हमारे फैमिली वैल्यूज और कल्चर, यही हमारा समाज का फाउंडेशन है, देश का, समाज का, सबका फाउंडेशन इंडिया का यही है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम सुनेंगे। हम और भी भाग्यशाली हैं कि श्री रमेश जी परतानी एवं श्रीमती भगवती जी बलदवा जैसे एमिनेंट स्पीकर्स को सुनने का मौका मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब इस प्रोग्राम से लाभान्वित होंगे। थैंक यू अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी। जय महेश, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी साहब। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के कार्य समिति सदस्य भाई श्री महेश जी बंदवा से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। और मैं हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि बंदवा जी को जाकर ससम्मान मंच पर लेकर आए। बन्नू मुझे पता है सभागृह को जिज्ञासा है कि आज के हमारे 2 जो वक्ता है, विशेष वक्ता है, उनको सुनने की, लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करूंगा कार्य समिति सदस्य अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा श्री महेश जी बंदवा 2 शब्दों से हम सबका यहाँ पर उत्साह वर्धन करें। श्री महेश जी बंदवा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा कार्य समिति सदस्य। आप जिनको सुनने के लिए बैठे हैं तो आप उनको सुनिए। हम सब समय बर्बाद करने वाले लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। कल आपके 2 शब्दों से हमारा उत्साह वर्धन हुआ है महेश जी साहब। तो बिना किसी विलंब के अब हम आज के हमारे कार्यक्रम के पहले वक्ता, अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध, जिनका इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक नाम चलता है, ऐसे हमारे प्रिय श्री रमेश जी परतानी, आप अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, आध्यात्मिक प्रशिक्षक एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के कार्य समिति सदस्य हैं। और इस विशेष कार्य के लिए जहां पर हमने जो टाइटल ही दिया है, क्रिएटिंग अ जीनियस माहेश्वरी जेनेटिक्स, जबकि रमेश जी का खुद का मानना है कि माहेश्वरी हमारी जो प्रजाति है, ये विश्व भर के इंटेलिजेंट ऊपर के 2-3
प्रजातियों में से एक है। और आने वाली हमारी जनरेशन को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे जीनियस बनाया जाए, उसके कुछ एक छोटे छोटे सूत्र, और ऐसे करिए कि छोटे छोटे जो हमारे संस्कार, जो हमारे पुरातन काल से चले आ रहे हैं, जो हमारे 16 संस्कार होते थे, उसमें से कुछ एक ऐसे संस्कार है जो हमारी भावी पीढ़ी को जीनियस बनाती है और समाज के बालक बालिकाओं को गुणवान बनाने हेतु उन्होंने जो हमको एक अनुपम अवसर दिया है, एक अभूतपूर्व अवसर दिया है। मैं चाहूंगा कि हम उस अवसर का पूरा लाभ ले। यहां पर तो बिना किसी विलंब के मैं माइक पर आमंत्रित करूंगा श्री रमेश जी परतानी। और मंचासीन सभी अतिथियों से, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी का निवेदन हुआ है कि सभी हम मिलकर बैठकर सुनेंगे, सभी मतलब सिर्फ हम वक्ता लोग नहीं, तो हम मन पर छोड़ते हैं हमारे दोनों वक्ता संवादकर्ता श्री रमेश जी परतानी और बहन भगवती जी बल्दा से भी निवेदन करेंगे कि आप मंच पर ही रहें। बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा सीखने की मुद्रा में आ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे 30 सेकंड के लिए, एक प्रार्थना करेंगे साथ मिलकर और उसके बाद फिर कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ने के साथ ओम का उच्चारण 3 बार हम साथ करेंगे। उसके बाद एक वैदिक प्रार्थना मैं करूंगा, उसको मेरे पीछे आप रिपीट करोगे और फिर बात स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस वैदिक प्रार्थना को रिपीट करिए। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। ये जो संकल्प, ये जो प्रार्थना हमने साथ मिलकर की, हमारी संस्कृति में ये प्रार्थना, आप जीवन में कोई नई बात सीखने जाते हो, कोई नया ज्ञान समझने जाते हो, तो नई बात सीखने से पहले ये संकल्प, ये प्रार्थना की जाती है। और इसके बहुत गहरे कारण है कि क्यों नई बात सीखने से पहले ये प्रार्थना करनी ऋषियों ने आवश्यक मानी है। ओम का उच्चारण 3 बार किया हमने सब साथ मिलकर। 100 से भी अधिक अर्थ है इस एक मंत्र के। ऋषियों ने एक पूरा उपनिषद लिखा है, मांडव्य उपनिषद, केवल ओम के विभिन्न अर्थों को समझाने के लिए। 2-3 अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद प्रार्थना पर जाएंगे। ओम का पहला अर्थ है, ये प्राइमोडियल साउंड है, आदि स्वर है। ईश्वर की ऊर्जा जब प्रकृति के पदार्थ में परिवर्तित हुई, एनर्जी व्हेन इट बिकेम मैटर, तो एनर्जी और मैटर के बीच का पुल ओम की ध्वनि। इसलिए आज भी आप अंतरिक्ष में जाओ, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की ध्वनि सुनो, 9 ग्रहों की सौर मंडल में अपनी ऑर्बिट में घूमने की ध्वनि सुनो, या पूरे सौर मंडल की गैलेक्सी में अपनी ऑर्बिट में घूमने की ध्वनि सुनो, तो वो ध्वनि कुछ ऐसी है। प्राइमोडियल साउंड, आदि स्वर आज भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है। ये एक अर्थ। आ
उ इन 3 स्वरों से मिलकर ओम का मंत्र बना है। मुंह खोलते हो तो पहला स्वर आ का निकलता है, मुंह बंद करते हो तो अंतिम स्वर का निकलता है। तो मुंह के खोलने से लेकर मुंह के बंद करने तक जितने स्वर आप निकाल सकते हो वो सारे इस एक मंत्र में ओम में समाहित है। ये दूसरा अर्थ है। आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, ऊ से महेश। सर्जन से लेकर विसर्जन तक की सारी क्रियाएं इस देश में, इस संस्कृति में ईश्वर की क्रियाएं मानी। किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा। बनाने वाले को गॉड कहा है, मारने वाले को शैतान कहा है, सेटन कहा है। केवल यही एक धर्म है, यही एक देश है, यही एक संस्कृति है जहां बनाने वाले को और चलाने वाले को तो देव कहा है और मिटाने वाले को महादेव कहा है। बनाने के लिए, सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की पत्नी बना दिया। चलाने के लिए धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी की पत्नी बना दिया। मिटाने के लिए शक्ति चाहिए तो शक्ति काली दुर्गा को शिव जी की पत्नी बना दिया। एक एक प्रतीक में इतने गहरे अर्थ हैं। ये एक मंत्र 3 बार इसका उच्चारण हमने किया तो मन थोड़ा सा स्थिर होता है। इसके बाद जो वैदिक प्रार्थना हमने की साथ मिलकर, पहली पंक्ति असत्वमा सत्यमय, कि हे ईश्वर मुझे सत्य से, असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। असत्य है और सत्य की ओर लेकर चलो। तो कहा ऋषियों ने कि नई बात सीखने से पहले, नया ज्ञान सीखने से पहले यह संकल्प आवश्यक है। 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। ये जो ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं ये वास्तव में असत्य है, हमें सत्य लगता है। ये जो रंग है लाल, हमको लाल दिखाई देता है और सफेद प्रकाश के 7 रंग इस कपड़े पर गिरते हैं तो उन 7 रंगों में से केवल लाल एक रंग है जो कपड़ा एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। बाकी 6 रंग इस कपड़े में रहते हैं। हमें वो 6 रंग दिखाई नहीं देते जो इस कपड़े का हिस्सा है। हमें एक रंग दिखाई देता है लाल, जो इस कपड़े ने स्वीकार ही नहीं किया, जो इस कपड़े का हिस्सा नहीं है। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना। बाहर जाए, पृथ्वी को देखें, सपाट नजर आती है, फ्लैट नजर आती है। और ज्योग्राफी के लिए हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, संस्कृत में, किसी भी भारतीय भाषा में ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। इस देश के मनुष्यों को हजारों वर्ष पहले पता था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट का नाम दिया भूगोल। पर पृथ्वी गोल दिखाई नहीं देती हमको, हम पृथ्वी को फ्लैट देखते हैं। यह है सत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना। सूर्य को सुबह सवेरे पूर्व से उगता हुआ देखते हैं, शाम को पश्चिम में जाके ढल जाता है। और सत्य यह है कि सूर्य न उगता है न ढलता है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पर हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई नहीं देती पश्चिम से पूर्व की ओर, हम सूर्य को घूमता हुआ देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। यह है सत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को मिस कर देना। इसलिए ऋषियों ने कहा जीवन में नया ज्ञान सीखने जाओ तो पहले संकल्प करो असत्वमा सत्यमय, कि हे ईश्वर ये ज्ञान मुझे जीवन के असत्य में सत्य को समझने की, सत्य को देखने की शक्ति दे। यही ज्ञान का पर्पस है, वही एजुकेशन का पर्पस है। बाकी सब क्वालिफिकेशन है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं डिग्री मिल जाती है, क्वालिफिकेशन मिल जाती है, विजिटिंग कार्ड पे अपने नाम के पीछे अक्षर छपा लेते हैं। और वो अक्षर, वो डिग्री आपको जीवन के असत्य को सत्य समझने की, असत्य में सत्य को समझने की शक्ति नहीं देती। असत्य में सत्य को देख पाना यह ज्ञान है। दूसरी पंक्ति पहली से भी गहरी, तमसो मा ज्योतिर्गमय है, कि हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। अंधकार प्रकाश है अज्ञान का, प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। तो वास्तविक संकल्प है कि हे ईश्वर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो। तो कहा ऋषियों ने कि नया ज्ञान सीखने से पहले यह संकल्प आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य में एक बीमारी है और पढ़े लिखे मनुष्यों में यह बीमारी और अधिक है। इस बीमारी का नाम ऋषियों ने दिया आई नो। मैं सब जानता हूं, मुझे नई बात कोई सिखा ही नहीं सकता, सर्वज्ञ है। ये अहंकार है हमारे थोड़े से, समझे कि कुछ है जो हम जानते हैं और बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। अपने अज्ञान से परिचित होना ज्ञान पाने की दिशा में पहली सीढ़ी। इसलिए ऋषियों ने कहा नया ज्ञान सीखने से पहले संकल्प करो तमसो मा ज्योतिर्गमय। और तीसरी पंक्ति दोनों से गहरी, मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर चलो। अब इस लाइन का अर्थ समझाने जाऊंगा तो घंटा 1.5 घंटा जो मुझे बोलना है वो प्रार्थना में निकल जाएगा।
तो इसको अभी छोड़ देते हैं। लेट्स गो आउट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ओम शांति शांति शांति, सारे विश्व में शांति। और ये संकल्प हमने इसके साथ ही बात शुरू की। तो मुझे जिस विषय पर बोलना है वो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्रिएटिंग ए जीनियस माहेश्वरी ट्रेंड नेक्स्ट। अब आपके मन में पहला प्रश्न ये उठेगा कि एक पूरी जनरेशन को हम जीनियस से बना सकते हैं। जीनियस तो लाखों में एक दो बनते हैं, तो एक सारी की सारी पीढ़ी को, एक पूरी आने वाली पीढ़ी को हम जीनियस कैसे बना सकते हैं? ब्रेन डेवलपमेंट के सबसे जो लेजेंडरी साइंटिस्ट है मनुष्यता के इतिहास में, फिलाडेल्फिया के ग्लेन डोमन, उनका सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य का शिशु जब जन्म लेता है, वो जन्म के साथ जीनियस बनने की अपार संभावना लेकर ही जन्म लेता है। हर शिशु जन्म लेते समय जीनियस बनने की संभावना लेकर जन्म लेता है। हर शिशु को जीनियस बनाया जा सकता है, हर मां अपने बच्चे को जीनियस बना सकती है, हर पिता अपने बच्चे को जीनियस बना सकता है। केवल उसको पता होना चाहिए कि मेरे शिशु को जीनियस बनाने के लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ये बताने की कोई संस्था नहीं है सारे विश्व में। पेरेंटिंग सिखाने का कोई ज्ञान कहीं पर नहीं, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में पेरेंटिंग सिखाई नहीं जाती। इसलिए इस विषय के बारे में इतना अज्ञान है। इस पूरी पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट महासभा ने अभी 1.5 महीने पहले शुरू किया है। 22-23 जुलाई को जो पहली मीटिंग थी कार्य समिति की, उस मीटिंग में यह तय किया गया कि यह प्रोजेक्ट विश्व के कोने कोने में बसे हर माहेश्वरी परिवार के घर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये वो प्रोजेक्ट है पूरी पीढ़ी को जीनियस बनाने का। और हर मां कर सकती है, हर पिता कर सकता है, केवल उसको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ मुझे करना है। नेक्स्ट, तो ये माहेश्वरी महासभा का प्रोजेक्ट है, एसोसिएशन हमारी कंपनी के साथ हैदराबाद में, आपके ही शहर का हूं, तो इस कंपनी के साथ मिलकर माहेश्वरी महासभा ने प्रोजेक्ट अभी लिया है 1.5 महीने पहले। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा एक प्रोग्राम के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में बसे किसी भी माहेश्वरी परिवार की स्त्री को, उसके पिता को, मां को वहां तक पहुंचाने का। इस कार्यक्रम का नाम है कौशल्या जीनियस किड प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम 0 से लेकर 15 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को घर बैठे दिया जा सकता है। मेरे द्वारा बनाया गया है। आप सोचोगे कि रमेश जी में क्या खास बात है, इनको जीनियस बनाने का ज्ञान कहां से आया, इनकी बात क्यों सुनी जाए सीरियसली। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं तो बिजनेसमैन हूं बेसिकली, पर कोई 96 में मैं अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी सुखबोधानंद में बैंगलोर में उनसे जुड़ा, उनसे आध्यात्म सीखा, उनकी सेवा करने के हेतु में प्रबंधन के, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स करने लगा। वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुए। सारे विश्व की 30-40 कंट्रीज में मैंने 3-4 हजार वर्कशॉप्स किए हैं। ये करते करते मेरी मां की ट्रस्ट में कुछ धन जमा हो गया, तो उस धन का सदुपयोग करने के लिए हमने तय किया कि उनके नाम पर एक स्कूल खोलेंगे। मां का नाम लगाना स्कूल में तो साधारण जनता स्कूल नहीं खोलनी थी, तो हमने एक मैनेजमेंट एजेंसी को अपॉइंट किया ये रिसर्च करने के लिए कि दुनिया में ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका कहां पर है। तो उस एजेंसी ने रिसर्च करके मुझे एक रिपोर्ट दी जिसमें इस साइंटिस्ट का नाम दिया, ग्लेन डोमन, जो फिलाडेल्फिया में रहते थे। अभी 6-7 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने एक प्रिंसिपल अपॉइंट की और बच्चा वहां पर सीखने के लिए फिलाडेल्फिया में वो गई। वहां पर उन्होंने सीखा, वहां से ब्रेन डेवलपमेंट का सारा प्रोग्राम, आकर हमारी स्कूल स्टार्ट कर दी। पहले वर्ष में 2 प्री स्कूल स्टार्ट हुई, दूसरे वर्ष में 2 और स्टार्ट हो गई। तीसरे वर्ष में उस स्त्री ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। अब वो 4 स्कूल मेरे गले में आ गए और मुझे पता नहीं था कि स्कूल कैसे चलाते हैं। तो मुझे लगा कि बिना मरे स्वर्ण दिखने वाला नहीं है स्वयं को, तो फिर मैं स्वयं गया फिलाडेल्फिया सीखने के लिए, क्योंकि उस स्कूल में मुझे चलानी थी। तो ग्लेन डोमन ने जब मुझे ब्रेन डेवलपमेंट का साइंस सिखाया, तो उसने जितना सिखाया मुझे उससे अधिक समझ में आया। अधिक समझ में इसलिए आया क्योंकि वो जो साइंस की लैंग्वेज में बातें मुझे बता रहा था, वो सारी की सारी बातें, लगभग सारी बातें हमारे आध्यात्म में संस्कृत में पहले से हैं, और मेरे गुरुजी द्वारा मुझे कई बातें मुझे पहले से सिखाई जा चुकी थी। तो वो जब जब नई नई बातें बोला था, मुझे लग रहा था ये तो है हमारे अध्यात्म। तो जितना उसने समझाया उससे मैं ज्यादा समझा। उसके बाद भी मैं 2 बार और गया फिलाडेल्फिया, मैंने 3 बार उससे ट्रेनिंग ली पूरी।
एक प्रश्न मैंने किया ग्रीन डोमेन से पूरी ट्रेनिंग के दौरान कि आपने जो इतने सुंदर मेथड्स बनाए हैं जीनियस बच्चे बनाने के, उसका जो 150 एकड़ का कैंपस है वहां पर फिलाडेल्फिया में, उसमें 300-400 जीनियस बच्चे कभी भी रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो आकर वहां रहते हैं और वहीं प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने उससे प्रश्न किया, एक ही प्रश्न किया मैंने पूरे तीनों प्रोग्राम्स में कि ये इतना जो सुंदर प्रोग्राम आपने बनाया है जिससे जीनियस बच्चे आप बनाते हुए दिखते हैं जीनियस बच्चे, ये इन सारे बच्चों पर एक जैसे कैसे असर करता है आपका प्रोग्राम? क्योंकि दो बच्चे एक जैसे तो होते नहीं, हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे पे सेम असर कैसे होता है? तो ग्लेन ने मुझसे कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर विषय पे मेरा रिसर्च नहीं है कि अलग अलग बच्चों पर क्या असर हो सकता है इस प्रोग्राम का, इस पर मेरा रिसर्च नहीं है। मैं जानता हूं कि मेथड से सारे बच्चे जीनियस बनते हैं, कोई कम जीनियस बनता है, कोई ज्यादा जीनियस बनता है, पर सारे जीनियस बनते हैं। मेरे मन को था शुरू से कि सारे बच्चों पर एक जैसा असर कैसे हो सकता है? दो बच्चे एक जैसे तो होते नहीं, ईश्वर ने बनाए नहीं है आज तक दो बच्चे एक जैसे। वो प्रश्न मेरे मन में था, स्कूल आ गई, स्टार्ट हो गई, स्कूल धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर बाद में अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दौरान में पिछले 2003 से 2010-12 के बीच में मैं कम से कम 150 बार मलेशिया सिंगापुर गया हूं। तो एक प्रोग्राम में मलेशिया में कोई साइंटिस्ट आया था इनॉग्रेट करने के लिए, उसने इनॉग्रेट किया और थोड़ा संकुचाते हुए बैठ गया कि रिबन काट के सीधा चला जाए घर को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बेचारा बैठ गया एक सेशन सुनने के लिए प्रोग्राम में। उसको अच्छा लगा उस सेशन, वो सारा दिन बैठा रहा। शाम को उसने मुझसे पूछा कि कल भी आऊंगा, मैंने कहा आओ। अगले दिन भी आया और लास्ट सेशन के पहले एक सेशन होता है हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है होल ब्रेन थ्योरी। ब्रेन के 4 क्वाड्रेंट से नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है 1981 की रॉजर फेरी की, कि 2 क्वाड्रेंट लेफ्ट ब्रेन में और 2 क्वाड्रेंट राइट ब्रेन में। तो चारों क्वाड्रेंट्स को यूज करके अपना बिजनेस आप अच्छी तरह से कैसे चला सकते हो, ये विषय है होल ब्रेन थ्योरी के उस प्रोग्राम का। उसने बहुत ध्यान से सुनी मेरी बात और फिर कहा मुझसे, सेशन के बाद में मिला मुझसे और कहा कि आप जो ये 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हो 1981 की थ्योरी है, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है। पिछले 15, 20, 25 वर्षों में बहुत काम हुआ है ब्रेन डेवलपमेंट पर और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर अब ब्रेन के 10 हिस्से आइडेंटिफाई किए हैं और उनके फंक्शंस भी समझ में आ गए हैं और उनके सॉफ्टवेयर भी बन गए हैं और मैं उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट हूं। तो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उससे कहा कि आप, तो उन्होंने कहा मैं ये सॉफ्टवेयर से हर बच्चे का टैलेंट प्रोफाइल समझा जा सकता है। मैंने कहा आप मेरा टैलेंट प्रोफाइल बताइए। तो उसने मेरा रिपोर्ट करके, मेरी टेस्ट करके मेरी एक रिपोर्ट दी और वो 97-98% रिपोर्ट करेक्ट थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे कहा कि मेरी माँ की ट्रस्ट का एक स्कूल है हैदराबाद में, तो क्या आप ये मुझे टेक्नोलॉजी दोगे? तो उसने मुझे दी टेक्नोलॉजी और फिर मैं हैदराबाद लेकर आया और पिछले 12-13 वर्षों से 11-12 वर्षों से वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात जो हमने जोड़ी इस स्कूल में वो थी आध्यात्म की शिक्षा जो मेरे गुरु जी से मिली थी, संस्कारों की शिक्षा। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज मिली हुई हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की फिलाडेल्फिया की ग्लेन डोमन की टेक्नोलॉजी, टैलेंट प्रोफाइल हर बच्चे का समझने की मलेशिया की प्रोफेसर ली की टेक्नोलॉजी और मेरे गुरुजी की, जो उनके गुरुजी ने और उनके गुरुजी ने यहां से भी आई हो भारतीय आध्यात्म की गंगा बहकर, वो भारतीय आध्यात्म के संस्कार, इन 3 चीजों को मिलाकर ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमको तो बोलने से पहले ही समझाया जाता है, मुंह खोलने से पहले, स्टेज पर जाने से पहले कि अंदर एक संकल्प लो। और वो संकल्प ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहीं ये नहीं समझ लो कि मैं बड़बोलापन अपने मुंह से कुछ बोल रहा हूं, तो ये संकल्प हमको लेना पड़ता है, गुरु जी का ये आशीर्वाद। और संकल्प ये है कि हम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मताचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। संकल्प ये लेना होता है कि सदाशिव से समारंभ हुआ है, पहले आदि गुरु है, शंकराचार्य मध्यमान गुरुओं की श्रृंखला में कहीं बीच में शंकराचार्य है, अस्मताचार्य पर्यंताम ये ज्ञान की गंगा बहकर मेरे गुरु तक पहुंची है, वंदे गुरु परंपरा। उस गुरु की परंपरा को, गुरु की परंपरा को मेरा प्रणाम। ये संकल्प लेना होता है क्योंकि जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये कहीं की गंगा मेरे तक पहुंचे और मेरे मुंह से निकल रही है, इतना ही। तो ये सारा इस प्रोग्राम में है। 2 प्रोग्राम इस कौशल्या दिनेश के प्रोग्राम में, एक 0 to 6 years के बच्चों के लिए प्रोग्राम है, वो एक अलग प्रोग्राम है, और 6 to 15 years के बच्चों के लिए एक अलग प्रोग्राम है। क्या असर होगा इस प्रोग्राम का? असर यह होगा कि बच्चे की बुद्धिमत्ता, IQ अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, उनके संस्कार, इमोशनल क्वोशेंट गहरे से गहरे उनमें संस्कार डाल सकते हैं। भगवती और बहुत बातें करेगी मेरे बाद में संस्कार पर, और उनमें आध्यात्म की जड़ें गहरे से गहरी डाल सकते हैं। पहले इस प्रोग्राम के
द्वारा पहले दिन से लेकर 15 वर्षों तक कभी भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था रायपुर में 15 अगस्त को नेशनल लॉन्च हुआ था इसका। उसके बाद इंदौर में दूसरा प्रोग्राम हुआ, तीसरा जालना में हुआ, ये चौथा प्रोग्राम है। देश के 71 जिलों में जहां 87% माहेश्वरी पॉपुलेशन रहती है, वहां अगले 6 से 9 महीने में इस प्रोग्राम को ले जाने की योजना है महासभा की। तो इसी श्रृंखला में ये चौथा लेक्चर है। 30 से 45 मिनट 0 to 6 ईयर्स के एज में, वो पहले प्रोग्राम में 30 से 45 मिनट माँ को या पिता को बच्चे के साथ प्रतिदिन देना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को 30 से 45 मिनट, और वो एक समय में नहीं है, दिन भर में 5 7 10 बार में दिया जा सकता है वो समय। और 6 to 15 वाले प्रोग्राम में दिन में 2-3 मिनट का है प्रतिदिन, और 30 से 40-45 मिनट के 2 वीडियोस हैं जो सप्ताह में 2 बार आएंगे, बुधवार को और शनिवार को। वो कभी भी आप देख सकते हैं। के लिए है, दूसरे समाजों के लिए है, उसकी कॉस्ट इससे करीब 4 गुना ज्यादा है। यहां पर ये कॉस्ट करीब अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए पर मंथ की है, जिसमें 18% जीएसटी जाता है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जाती है और पेमेंट गेटवे की कमीशन जाती है, जाकर 352 रुपए कुछ इसके प्रति माह कंपनी में आते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मैनेजमेंट और कंटेंट डिलीवरी की कॉस्ट है। तो माहेश्वरी समाज के लिए या अपने समाज के लिए नो प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर ये प्रोग्राम देने का ये महासभा का आदेश है, और उसी आदेशानुसार ये सारी कॉस्ट तय की गई है। नेक्स्ट, पहले 6 वर्षों के प्रोग्राम में 80% फोकस होगा बच्चों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने पर, आईक्यू बढ़ाने पर, क्योंकि 80% ब्रेन डेवलपमेंट पहले 6 वर्षों में हो जाता है। तो उस समय बुद्धि आप जितनी चाहो बढ़ा सकते हो। 20% फोकस होगा आध्यात्म के और संस्कारों के बीज बच्चे के दिमाग में डालने का, क्योंकि सिर्फ बीजारोपण हो सकता है पहले 6 वर्षों में, वो बीज पहले 6 वर्षों में डालने का 20% फोकस ईक्यू और आईक्यू का होगा। ईक्यू मतलब संस्कार, इमोशनल कोशेंट, और एसक्यू मतलब, और 80% उसके आध्यात्म की जड़ों को और उसमें संस्कार जो भरे हुए हैं उसको और निखारने का ये कार्यक्रम 80% फोकस 6 से 15 में इस पर होता है। नेक्स्ट, 0 to 6 ईयर्स वाले प्रोग्राम में क्या होता है? सबसे पहले जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो एक क्वेश्चनर आती है। मान लो बच्चे ने प्रोग्राम 1 साल की उम्र में ज्वाइन किया, या 6 महीने की उम्र में ज्वाइन किया, या पहले महीने में ज्वाइन किया। एक क्वेश्चनर आती है, उसके 42 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं पहले 6 वर्षों में। उन माइलस्टोन्स के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करूंगा अभी। 42 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं पहले 6 वर्षों में। तो अगर वो 1 वर्ष में ज्वाइन कर रहा है तो 24 माइलस्टोन डेवलप हो चुके होने चाहिए। अगर 6 महीने में ज्वाइन कर रहा है तो उसके 18 माइलस्टोन हो चुके होने चाहिए। 3 महीने में ज्वाइन कर रहा है तो उसके 12 माइलस्टोन हो चुके होने चाहिए। तो वो जो माइलस्टोन्स उसके नेचुरल डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये तय करने के लिए क्वेश्चनर आती है, जो माँ को यस नो करके फिल करके देनी होती है। वो सब ऑनलाइन है। अगर वो माइलस्टोन डेवलप हो गए हैं तो बचे हुए माइलस्टोन को फास्ट डेवलप करने के तरीके दिखाए जाते हैं। अगर नहीं हुए हैं डेवलप तो उसमें जो कमी रह गई है उसको डेवलप करने के तरीके बताए जाते हैं। तो पहला स्टेप है माइलस्टोन की असेसमेंट। इसके बाद जो 3 प्रोग्राम ऑनलाइन है, ये सारा ऑनलाइन है 3 प्रोग्राम। इसमें प्रतिदिन 10 होशियार है। 5-7% बच्चे हर स्कूल में, हर कॉलेज में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और 90-92% बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। तो इन बच्चों में वो 5-7% जो ब्रिलियंट होते हैं और 90-92% जो एवरेज होते हैं, इनमें भेद क्या है? इन दोनों ग्रुप्स में भेद केवल 3 है। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो पढ़ते तेज हैं, पढ़ते अच्छा है, रीडिंग अच्छी करते हैं। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो गणित अच्छा करते हैं, और जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनका सामान्य ज्ञान साधारण बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये 3 बातें, रीडिंग, मैथ और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, यदि आप पहले 6 वर्षों में किसी भी बच्चे को सिखा दो तो हर बच्चा ब्रिलियंट हो सकता है। जो 5-7% नेचुरली ब्रिलियंट है तो किसी भी स्कूल में ब्रिलियंट होंगे, पर बाकी 3 बातें यदि पहले 6 वर्षों में आप सिखा दो तो हर बच्चा ब्रिलियंट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में क्यों नहीं सिखाते ये 3 बातें? हम ये 3 बातें जो साधारण स्कूलों में सिखाते हैं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का सिखाने का तरीका गड़बड़ है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि पहले 6 वर्षों तक का तो एजुकेशन सिस्टम में 2020 तक कोई स्थान ही नहीं था। जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 6 वर्ष